قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میں سب سے پہلے جو معصوم پھول اس فانی دنیا میں آنکھ کھولنے کے بہت مختصر مدت قیام کے بعد اپنی آخری اور ابدی منزل کی طرف منتقل ہو گئے، رواں ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ سب کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے درجات بلند فرمائے، اور یہ جو عظیم سانحہ ہے، عظیم دکھ ہے جو اس بیٹے کی والدہ اور پورے خاندان کو پہنچا ہے، یقیناً ہم میں سے ہر ایک آج دکھی حالت کے اندر ہے، چونکہ کچھ ہی وقت پہلے اس پیارے پھول کے والد گرامی محترم چودھری منور صاحب مرحوم و مغفور یہ فانی دنیا چھوڑ گئے، اور جب ان کی ولادت ہوئی تو یقیناً وہ غم ہم تو دور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس بیٹے کو دیکھ کر تھوڑا بہت سہارا ضرور ملا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جیسے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مرضی، ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ میں انتہائی محترم اپنے بھائی حضرت علامہ حافظ سلیم صاحب زیدہ مجدہم اور پورے خاندان کے لیے ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ جو بچے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ طبقہ اولیاء میں ایک بڑا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ پولیس آفیسر تھے اور لوگوں کی مار پٹائی کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جو بچپن میں اس بیٹی سے یہ بہت پیار کرتے تھے، وہ فوت ہو گئی۔ آپ کو بڑا غم پہنچا، تو بعد از وفات وہ بیٹی خواب میں آئی، تو آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اسے بازو میں اٹھا لیا۔ یہ خواب کی بات ہے، بازو میں اٹھا لیا، اس نے اپنے معصوم ہاتھ باہر نکالے اور آپ کے چہرے پر پھیرنے لگی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ کی تلاوت کی کہ الم یأن للذین آمنوا، یعنی جس کا مفہوم یہ تھا کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ان پر طاری ہو جائے اور وہ جھک جائیں۔ جب اس معصوم پھول بیٹی نے جب وہ آیہ مقدسہ پڑھی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو معصوم پھول تھی، بیٹی تھی، یہ تو قرآن پڑھی ہوئی نہیں تھی، یہ کلام کرنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے خواب میں اس بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی آپ نے تو قرآن پاک ابھی نہیں پڑھا تھا، یہ قرآن پاک تمہیں کیسے آتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگی کہ پیارے ابا جان، ہم جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہم زندوں سے کئی گنا زیادہ قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں اور سمجھنا بھی جانتے ہیں۔ اسی اسنا میں آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ پر وہ خشیت، وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، وہ کیفیت طاری ہوئی کہ پھر آپ کا شمار، آپ کی آئندہ جو زندگی تھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گزری، سنت کے مطابق۔ میں عرض کرتا چلوں،
इस्लाम यहाँ उलमाए कराम की कसीर तादाद है, काबिल कदर उलमाए कराम, आप हजरात भी जानते हैं, उलमा को समात करते रहते हैं। मेरी सोच के मुताबिक इस्लाम का अगर खुलासा बयान किया जाए, पूरा खुलासा कोई कहे कि क्या है, हमें सादा लफ्जों में बता दें, तो मेरे प्यारे साहिबों, इस्लाम का खुलासा, इससे पहले कि मैं उस बात पर जाऊं, आज ये जो मासूम फूल इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, ये इस चीज़ का ऐलान भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम पे बुढ़ापा तारी होगा तो हम जाएंगे, सुभान अल्लाह। नहीं, ये अल्लाह को मालूम है कि इसकी कितनी मुद्दत है। जब वो घड़ी आ जाएगी तो फिर एक लम्हे की तकदीम व ताखीर नहीं होगी। और ये मासूम फूल तो खुशकिस्मत है, इतने प्यारे लोग आप जैसे रुखसत करने के लिए आए बैठे हैं। मैं देख रहा था जो हमारा पड़ोसी मुल्क, वहां पे अभी जो कुछ हो रहा है, हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। वहां पर किसी ने लिखा कि दिल्ली उजड़ रहा है, वहां पर वो लाशें लाई जाती हैं, गड्ढे में फेंकी जाती हैं और ऊपर से बुलडोजर जो ना फेरा जा रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा लाशें दरिया जमुना और दरिया गंगा में, यानी आप भी, आज का सोशल मीडिया का दौर है, हम देख रहे हैं कि वहां इन लाशें तैर रही हैं। शमशान घाटों में उनके पास लकड़ियां इतनी नहीं है कि उनकी चिताओं को जलाया जाए। मैं ऐसे माहौल में जब दुनिया वालों को इस तरह देखते हैं, हम सारे लोग, हम सोचते हैं वो खुशबख्त हैं जो जिनके लिए कब्र भी जिन्हें मुयस्सर आती है, जिसे इतने प्यारे लोग रुखसत करने के लिए, बड़ी शान के साथ रुखसत करने के लिए आते हैं। अल्लाह को मालूम है हमारे साथ क्या होगा। मैं अर्ज करता चलूं, इस्लाम का खुलासा दो चीजें हैं, एक अल्लाह का हक है, और अल्लाह का हक वो फराइज के, वो इबादत के। नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह का हक अदा नहीं होगा। उसकी इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह का हक अदा नहीं होगा। और दूसरी चीज है इंसान का हक, अल्लाह के बंदू का हक। अल्लाह के बंदू का हक क्या है? एक इंसान के अखलाकियात हैं, एक इंसान की मुआशरत है, एक इंसान के मामलात क्या हैं। सुभान अल्लाह। क्या आप अपने मुसलमान भाई से झूठ बोलते हैं, गिबत करते हैं, उसकी अदम मौजूदगी में गिबत कर रहे हैं, ना इंसाफी से काम ले रहे हैं? समझें कि आपके अखलाक और आपके मामलात दुरुस्त नहीं है। और ये दोनों चीजें अल्लाह का हक और अल्लाह के बंदू का हक, ये इस तरह लाज़िम व मुल्ज़ूम है। यानी अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये कमी अखलाकियात और मामलात में अगर सही भी हुए तो ये कमी पूरी नहीं होगी। और अगर हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, दीन इस्लाम के सुनहरे उसूलों पर तो पाबंदी कर रहे हैं, फराइज तो अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अखलाक ठीक नहीं है। हम बात बात पे झूठ बोलते हैं, गिबत करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, कम तोलते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं। याद रखें, ये कमी भी नमाज से पूरी नहीं होगी। जिस तरीके से खाना खाना और पानी पीना दो अलग चीजें हैं। हम खाना जितना भी खा लें, पानी की कमी पूरी नहीं होगी। और अगर पानी जितना भी पी लें, जब तक खाना तनावल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी भूख नहीं मिटेगी। लिहाजा मैं अर्ज करता चलूं, जब हमें ये बात हमारे रोज़े रोशन की तरह आ जाएगी, इन खूबसूरत चोटियों ने, इन खूबसूरत जितने भी ये बुलंदों वाला पहाड़ हैं, इन्होंने बेशुमार लोगों को रुखसत होते हुए देखा। हम भी उठ जाएंगे और अनकरीब हम इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। हर लम्हा हम मौत के करीब हो रहे। मैं अर्ज करता चलूं, दो चीजों का ख्याल रखने वाले कामयाब होंगे।
अल्लाह का हक यानी इबादत में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के बंदों का जो हक है यानी जो अखलाकियात हैं, जो मामलात हैं, जो दिगर, उनमें भी पूरा उतर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको सदा सलामत रखे। और ये जो मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ सलीम साहब और इनके ख़ानदान को ये जो अजीम सानहा और अजीम दुख पहुंचा है, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए, बच्चे के दर्जात बुलंद फरमाए और इस बच्चे को क़यामत वाले दिन इन सब की बख्शिश का सामान बनाए।